اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے جنگل کی زندگی۔ کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ آج ہم لوگ پڑھیں گے جنگل کی زندگی، ٹھیک ہے؟ جنگل کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنگل میں جانور کیسے رہتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کیا ہے، اور جنگل سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہے۔ تو جنگل سے ہمیں بہت فائدہ ہے، پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ہوا صاف ملتی ہے، آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور جنگل کے پیڑ سے ہمیں عمارت کے لیے لکڑیاں ملتی ہے، اور بہت سارے سامان، پھل پھول اور کھانے پینے کی چیزیں اور کوئلہ، یہ ساری چیزیں ہمیں جنگل سے ملتی ہیں۔ تو آئیے اسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو کہانی ہے یہ پورا اینیمیٹڈ ہوگا، اور اس میں سارے سوال جواب اور جو بھی آپ کے ایکسٹرا کام ہے سارا میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، اچھے سے دیکھیے گا اور اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جو بھی آپ کا کام ہے، واحد جمع، متضاد الفاظ، بھرنے والا کام اور جملہ بنانا، یہ سارے کام میں اسی ویڈیو میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ جنگل کی زندگی کے متعلق آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی۔ آؤ آج آپ کو جنگل کے بارے میں کچھ اور دلچسپ باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ جنگل کی جو زندگی ہے اور وہاں جو جانور رہتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ساری کہانی سنی ہے۔ تو آؤ آج آپ کو جنگل کے بارے میں کچھ اور دلچسپ باتیں بتائیں، ٹھیک ہے؟ جنگلی جانور اتنے خونخوار نہیں ہوتے جتنا عام طور پر انہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو جنگلی جانور ہے خونخوار یعنی بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کسی وقت بھی انسان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جنگلی جانور اتنے خونخوار نہیں ہوتے ہیں جتنا عام طور پر انہیں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بلا وجہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، البتہ بھالو اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو کبھی کبھی بے وجہ حملہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ جو جانور ہے بلا وجہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، جب ہم جانور کو چھیڑتے ہیں تبھی وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسے کتا ہے ہم چھیڑتے ہیں تب وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، جسے گائے ہے، بیل ہے، ان سب کو جب ہم چھیڑتے ہیں تب یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے شیر ہے، یہ کیا خونخوار جانور ہے، یہ کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اور بھالو اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہو تو کبھی کبھی بے وجہ حملہ کر بیٹھتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ شیر، چیتے، ہاتھی، گینڈے اور دوسرے جنگلی جانوروں سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ اور یہ جو خونخوار جانور ہیں ان جانوروں سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ان کے طور طریقے نہیں سمجھتے اور ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس سے جانوروں کو ہمارے اوپر غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم ان جانوروں کے کیا طور طریقے کو نہیں جانتے ہیں، ان کی باتیں نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہماری باتیں نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس سے جانوروں کو ہم پر غصہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کا دم کھینچ لیتے ہیں، یا ہم شیر کے سامنے اگر چلے جائیں تو اس کو کیا ہم پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہم پر کیا ہے حملہ کر دیتا ہے۔ یہ جانور جنگل کے باسی ہیں، یہ جانور جنگل کے باسی یعنی رہنے والے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں بسنے والے ہیں، جنگل میں باسی کہتے ہیں بسنے والے کو، یعنی یہ جانور کیا جنگل کے باسی ہے، جنگل میں رہنے والے ہیں۔ یہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں خضرو پیڑ پودے، گھاس پھوس اور جھاڑیاں کثرت سے ہوتی ہیں۔ یہ جانور جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں خضرو پیڑ پودے، خضرو کسے کہتے ہیں؟ ایسے پیڑ پودے جو کیا ہے خود نکل آتے ہیں، ایسے پیڑ پودے جو خود نکل آتے ہیں اور جنگل میں ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، تو اسے خضرو پیڑ پودے کہتے ہیں، جو کوئی کام کے نہیں ہوتے، یہ جنگلی پودے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں کیا خضرو پیڑ پودے، گھاس پھوس اور جھاڑیاں کثرت سے ہوتی، کثرت یعنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جنگل میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، چڑیاں اور جانور پائے جاتے ہیں۔ جنگل میں کوئی نہ کوئی چشمہ، جھیل یا ندی بھی ہوتی ہے۔ تمام جنگل ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ ہر جنگل کی آب و ہوا اور زمین کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے۔ جنگل میں کیا طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چڑیا ہوتی ہے، جانور پائے جاتے ہیں، اور جنگل میں کوئی نہ کوئی چشمہ یا جھیل یا ندی ضرور ہوتا ہے جس سے کیا جنگلی جانور پانی پیتے ہیں اور پانی پی کر سیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام جنگل ایک سے نہیں ہوتے ہیں، اور جو تمام جنگل ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔
हर जंगल की आबो हवा और ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है, यानी अलग अलग होती है। इसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, और इसी लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। जैसी वहाँ की आबो हवा होती है, जैसी ज़मीन की बनावट होती है, उसी लिहाज से वहाँ पेड़ पौधे उगते हैं और जानवर होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि शेर हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर जंगल में नहीं मिलता है। शेर ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ होती हैं, यानी घने जंगल होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर मिल जाते हैं। और ऐसे जंगल जहाँ बहुत सारे छोटे बड़े जानवर हो, जिससे क्या है शेर अपना शिकार आसानी से कर ले। तो शेर क्या है, ऐसे जंगल में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ हो, पेड़ पौधे हो और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर मिल जाएं। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और हमारे मुल्क में क्या है, कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मिसलन चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह। जो पहाड़ी जंगल होते हैं उसमें क्या है, तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे चीड़ का पेड़, देवदार, साल और सागवान का पेड़। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। और ऐसे जंगलों में क्या होता है, शेर, तेंदुआ, भालू और तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। तो आपको पूछा जाएगा सवाल में कि पहाड़ी जंगलों में किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, तो आप जवाब में लिखेंगे कि वहाँ क्या है, चीड़, देवदार, साल और सागवान के पेड़ पौधे हमें मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे जंगलों में क्या है, शेर, तेंदुआ, तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। और मैदानी जंगल जो है हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन जंगलों में घने, ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह, इन जंगलों में क्या है, ऊंचे और चौड़े पत्ते वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह होते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है, और मैदानी जंगल में भी क्या है, पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है। इफरात यानी होता है ज़्यादती, यानी पानी यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आते जाते रहते हैं, और जानवर क्या है, पहाड़ के ऊपर से आते हैं, मैदानी जंगल में रहते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, यानी आते जाते रहते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। रेगिस्तान में क्या है, पानी की कमी होती है, इस वजह से वहाँ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ती के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, बबुल वगैरह, ठीक है। और ऐसे पौधे होते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे पौधे कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं और बेपत्ती के पेड़ होते हैं। यहाँ ऊँट, बबर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। और रेगिस्तानी जंगल में कैसे जानवर मिलते हैं, ऊँट मिलते हैं, क्योंकि ऊँट क्या है, बहुत कम पानी पीते हैं और वो एक बार पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर लंबा सफ़र करते हैं रेगिस्तान में, ठीक है। और बबर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर रेगिस्तानी जंगल में मिलते हैं। ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिलती है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवर का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं। अब यहाँ पर जो जंगल में ज़्यादातर जानवर ऐसे होते हैं जिनको पौधों से ग़िज़ा मिल जाती है, जैसे हाथी है, वो पेड़ पौधे खाते हैं, उसका शाख तोड़ तोड़ कर खा लेते हैं। बंदर क्या, फल फ्रूट खाता है। और जो भी चिड़िया है वो क्या, फल खाती है। तो यहाँ क्या, ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिल जाती है। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह। और कुछ जो जानवर होते हैं जो गोश्तखोर जानवर होते हैं, वो दूसरे जानवर का शिकार करके गोश्त वगैरह खाते हैं, ठीक है। चरिंदों से ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। चरिंद किसे कहते हैं, चरने वाले जानवर को, ठीक है। चरिंद कहते हैं चरने वाले जानवर। जो चरने वाले जानवर हैं वो क्या है, जंगल के पेड़ पौधे खाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जंगल हल्का रहता है, जंगल बहुत भरता नहीं है, ठीक है।
अगर ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाएं कि इनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाए। ठीक है, चरिंदों से ये फ़ायदा होता है, यानी चरने वाले जानवर से हमें ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधे को खाते रहते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाएं कि इनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाए और पेड़ पौधे मर जाएं। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हों तो चरिंदे इतने हो जाएं कि सारे का सारा जंगल खाकर ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हो, दरिंदे कौन हुआ? जो जंगली जानवर होते हैं, जो दूसरे जानवर का शिकार करके खाते हैं। तो अगर दरिंदे ना होंगे तो चरिंद इतने हो जाएंगे, यानी चरने वाले जानवर इतने हो जाएंगे कि सारे का सारा जंगल खाकर ख़त्म कर देंगे। समझ गए आप? अगर शेर नहीं होगा, शेर क्या करता है कि जानवर का शिकार करके खाता है। तो अगर शेर नहीं होगा तो ये जो जानवर हैं पूरे जंगल को खाकर ख़त्म कर देंगे। चिड़िया जंगलों के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते हैं। चिड़िया क्या है? कीड़े मकोड़े खाती है, तो इनकी वजह से क्या है? कीड़े मकोड़े कम रहते हैं। वो बीजों को भी बिखेरती है और इनकी बीट से जंगल ज़रख़ेज़ होते हैं। वो क्या होता है? बीज खाती है फल का, और वो बीट करती है। तो बीट क्या बिखेरती है? बीजों को चारों तरफ बिखेरती है, जिससे क्या छोटे छोटे पौधे भी निकलते हैं और इसकी वजह से जंगल ज़रख़ेज़ भी होते हैं। ठीक है, गर्ज़ हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है। और बात यह है कि हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, और किसी ज़माने में यानी बहुत पहले ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने से, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क में पहले बहुत जंगल होते थे, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है और शहर आबाद हो गए हैं, खेती बाड़ी हो रही है, कारखाने बने हैं, इसकी वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है, हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, बारिश खूब होती है, बाढ़ की तेज़ी कम होती है। इसके अलावा जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबर, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। सबसे पहले तो जंगल की वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, आबो हवा अच्छी रहती है, बारिश भी खूब होती है और बाढ़ की तेज़ी कम होती है, क्योंकि जब जंगल होता है उसका जो पेड़ है वो पानी को रोकता है। ठीक है, इसके अलावा जंगलों में हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती है, इमारत के लिए लकड़ी मिलती है, शहद, गोंद, कोयला, रबर, कागज़ बनाने के लिए लकड़ी, तारपीन का तेल, बेशुमार चीज़ें हमें जंगल से हासिल होती हैं। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है। गर्ज़ जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी है कि इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी क्या है? मुकम्मल नहीं है। तो गर्ज़ ये है कि जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। अब आइए माने देख लेते हैं। खूनखार माने होता है चीर फाड़ करने वाला। ठीक है, खुदरू यानी अपने आप उगने वाला, ऐसे पौधे जो अपने आप उग जाते हैं। चश्मा कहते हैं ज़मीन से उबलने वाला पानी। वादी यानी पहाड़ के करीब ज़मीन में जहाँ दरख्त कम और पानी बहने का रास्ता हो। इफ़रात यानी ज़्यादती। ज़रख़ेज़ यानी उपजाऊ, वो ज़मीन जहाँ अच्छी पैदावार होती है। कसरत यानी ज़्यादती। ठीक है, अब आइए गौर करने की बात पढ़ लेते हैं। माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने में जंगलों की बड़ी अहमियत है। ठीक है, जंगलों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। माहौलियाती तवाज़ुन यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी ज़िंदगी के लिए जंगल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे जंगल को काट देंगे तो ज़िंदगी क्या तवाज़ुन नहीं रहेगी, हमें साफ़ हवा नहीं मिलेगी और पेड़ पौधे से हमें जो चीज़ें मिलती है वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होगी। तो माहौलियाती तवाज़ुन यानी इन्वायरमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जंगल भी होना चाहिए और आबादी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए जंगल की ज़िंदगी का सवाल जवाब देख लेते हैं। ठीक है,
तो जंगल की ज़िंदगी क्या है, आपका चैप्टर 9 है और ये एक मजमून है। क्या है, ये एक मजमून है, याद रखिएगा। तो इसके सवाल जवाब देख लेते हैं और जो भी इसके काम है मैं सारा इसमें करवाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है? तो हम लिखेंगे जवाब, जंगली जानवर खूनखार होते हैं, यानी ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए हमें जंगली जानवर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत आसान है। जंगली जानवर खूनखार होते हैं, ये किसी वक्त भी हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें जंगली जानवर से दूर रहना चाहिए। सवाल है, शेर किस तरह के जंगलों में रहता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसे आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर मिल जाते हैं। शेर क्या है, ऐसे जंगलों में रहता है जहाँ खूब झाड़ियाँ हो, पेड़ पौधे हो और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर मिल जाएं। जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम बताइए। अब जंगल में कौन से मशहूर दरख्त पाए जाते हैं बताइए। जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मसलन चीड़, देवदार, साल और सागवान वगैरह। याद रखिएगा कौन कौन से पेड़ हैं, चीड़, देवदार, साल और सागवान वगैरह। जंगल की ज़मीन किस तरह ज़रख़ेज़ होती है? जंगल की ज़मीन चिड़िया की बीट से ज़रख़ेज़ होती रहती है, ठीक है। और भी जो जानवर हैं उसके फजले से, यानी उसके लैट्रिन से ज़मीन क्या ज़रख़ेज़ होती है, और चिड़िया की बीट से भी ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है। ज़रख़ेज़ मतलब ऐसी ज़मीन जहाँ पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है। सवाल, नागफनी, बबुल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इन पौधों में पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हम क्या लिखेंगे, नागफनी, बबुल और कांटेदार पौधे में पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, ठीक है। अगर जंगल ज़्यादा हो जाएं तो इन्हें क्या नुकसान हो सकता है? तो जवाब लिखेंगे, अगर जंगल ज़्यादा हो जाएं तो इनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे, ठीक है। अगर जंगल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इनमें रोशनी नहीं आएगी क्योंकि जंगल बहुत घना हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे। सवाल, अगर जंगल ना होते तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती? तो हम जवाब लिखेंगे, अगर जंगल नहीं होते तो हम ताज़ी हवा से महरूम रहते हैं। जंगल की वजह से हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, बारिश खूब होती है। जंगल से हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारत के लिए लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबर, तारपीन का तेल और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हमें जंगल से मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जंगल से हमें क्या क्या मिलता है। आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, एक बार मेरा पढ़ाया हुआ भी सुन लेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। आप लिखेंगे, अगर जंगल नहीं होते तो हमें ताज़ी हवा नहीं मिलती, जंगल की वजह से ऑक्सीजन में कमी नहीं होती है, बारिश खूब होती है और जंगल से हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारत के लिए लकड़ी, शहद, गोंद, कोयला, लाख, रबर, तारपीन का तेल वगैरह मिलता है और जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगे और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं, ठीक है। मैं आपकी वीडियो में बहुत मेहनत करती हूँ, आपके लिए वीडियो एनिमेटेड बनाती हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिल लगे और पढ़ने में आपको मज़ा आए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ उसमें, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे और पढ़ने में मज़ा आए, ठीक है। आइए अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। आपका लफ्ज़ है दिलचस्प। मेरे पास दिलचस्प कहानी की किताब है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जंगलों की बहुत सारी दिलचस्प कहानियाँ हैं, या जंगली जानवर की बहुत सारी दिलचस्प कहानी है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। खूनखार यानी शेर खूनखार जानवर है। कसरत, जंगल में कसरत से जानवर पाए जाते हैं, कसरत यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तौर तरीक़े, हम जानवर के तौर तरीक़े नहीं समझते हैं, तौर तरीक़े यानी रहने सहने का तरीक़ा। ज़रख़ेज़, चिड़िया के बीट से जंगल ज़रख़ेज़ होते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए, ठीक है। ये है गुस्सा, किस्म, जंगलों, हमारे लिहाज। अब आइए अल्फाज भरते हैं। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल था, यहाँ क्या होगा, हमारे, इसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, यहाँ क्या भरा जाएगा, लिहाज, ठीक है, लिहाज भरा जाएगा।
जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। यहाँ क्या होगा, जंगलों। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं, ठीक है। जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। यहाँ क्या भरेंगे, गुस्सा। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाइए। तो जो वाहिद है उसका जमा बनाएंगे और जो जमा है उसका वाहिद बनाएंगे। जंगल का होगा जंगलों, कहानी का कहानियाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ, परिंद का परिंदों और दरिंद का दरिंदों और दरिंदे, ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस बनाइए। मुज़क्कर आप जानते हैं, मुज़क्कर किसे कहते हैं, जो लड़का ज़ात हो, जो मेल ज़ात हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। जो फीमेल ज़ात हो, जो औरत ज़ात हो उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे शेर क्या है, मेल है, तो इसका मुअन्नस शेरनी होगा। जैसे अब्बा का मुअन्नस अम्मी होता है, लड़का का लड़की होता है, भाई का बहन होता है। उसी तरह शेर का शेरनी, हाथी का हथनी, बंदर का बंदरिया, ऊँट का ऊँटनी, हिरन का हिरन, ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखे। मुतज़ाद मतलब क्या होता है, ज़िद लिखे। ज़िद यानी उल्टा लिखे, ठीक है। उल्टा यानी अपोजिट लिखे, समझ गए होंगे आप। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड लिखे। दिलचस्प का होगा गैर दिलचस्प, नुकसान का नफ़ा, कसरत का क़िल्लत। कसरत यानी बहुत ज़्यादा, क़िल्लत यानी बहुत कमी। रोशनी का उजाला, आबाद का बर्बाद, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि जंगल की अहमियत पर 5 जुमले लिखिए। तो आइए देख लेते हैं। जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है, जंगल की वजह से बारिश भी खूब होती है, जंगलों में हमें तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती है, जंगल से हमें इमारत के लिए लकड़ी मिलती है, जंगल से कोयला, रबर, कागज़ बनाने की छाल वगैरह मिलती है। तो ये तो जंगल की अहमियत पर 5 जुमले थे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। अल्लाह हाफिज़।